قال عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم۔ ہمارا توبہ کا موضوع چل رہا ہے، اور توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، اور توبہ ایمان والوں کا پہلا عمل ہے۔ توبہ ہوتی ہے تو ایمان آتا ہے، اور نبیوں نے زندگی میں توبہ کو شامل کیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ توبہ استغفار کرتے تھے، ایک ایک مجلس میں 70 دفعہ 100 دفعہ استغفار کر لیتے تھے، ایک ایک مجلس میں بیٹھے استغفار کرتے تھے۔ آدم علیہ السلام کا پہلا کلمہ جو اللہ نے ان کو سکھایا، پہلا جملہ جو سکھایا وہ توبہ تھی۔ تو انہی باتوں کا آج تسلسل لے کے چلتے ہیں۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، توبہ ابھی تک ہو نہیں رہی۔ ایک توبہ زبان کی ہے اور ایک توبہ عمل کی ہے۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا۔ وہ توبہ کرتے پھر نیک عمل کرتے ہیں۔ وہ صرف توبہ انگلیوں پہ نہیں کرتے، ان کی دل کی توبہ ہوتی ہے۔ ان کا دل توبہ کی طرف آ جاتا ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے پچھلی جمعہ کہا، مومن کہتا ہے میں نے گناہ کر لیا، جب تک توبہ نہیں کرتا اس کو قرار نہیں آتا، اور منافق گناہ کو سمجھتا ہے ناک پہ مکھی بیٹھی میں نے اڑا دی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ گناہ کرتا ہے، اس کے دل پہ نقطہ پڑتا ہے۔ گناہوں کا تعلق دل کے ساتھ ہے، ہمیں فکر ہی نہیں ہے۔ گناہ ہوتے جا رہے، گناہ ہوتے جا رہے، گناہ ہوتے جا رہے، نہ دل پریشان ہے، نہ انسان پریشان ہے، نہ توبہ کی طرف توجہ ہے۔ فرمایا دل کے اوپر ایک نقطہ پڑتا ہے، یہ توبہ کر لیتا ہے، دل پھر چمکنے لگ جاتا ہے۔ اور یہ توبہ نہیں کرتا، ایک نقطہ لگتا ہے، دوسرا نقطہ لگتا ہے، تیسرا نقطہ لگتا ہے، اس کے گناہ موجود ہیں، اس کی توبہ نہیں ہے، حتیٰ کہ سارا دل کیا ہو جاتا ہے؟ سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی، کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ ہرگز نہیں، ان کے دلوں پہ زنگ لگ گئے ہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ ہرگز نہیں، ان کے دل زنگ آلودہ ہو گئے ہیں، ان کے دل زنگوں سے بھر گئے ہیں۔ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو گناہ یہ کرتے ہیں۔ توبہ والوں کے دل چمک جاتے ہیں، اور جو توبہ نہیں کرتے ان کے دل سیاہ ہو جاتے ہیں، زنگ آلود ہو جاتے ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ جو دل میں پریشان رہتا ہے کہ میں نے توبہ کر لی، اور توبہ کے بعد عمل نیک کرنے ہیں۔ جس کو توبہ کے بعد نیکی کی توفیق مل گئی، وہ سمجھے اس کی توبہ ہو گئی۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ یہی تو لکھا ہے، وَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ فَأَصْلَحَ۔ وہ توبہ کے بعد اصلاح کرتے ہیں۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اس نے توبہ کی اور پھر نیک عمل کیے، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، انہوں نے توبہ کا حق ادا کر دیا۔ جس نے توبہ کے بعد نیکی کر لی ہے نا، توبہ کا حق کس کو ملا؟ وہ نیک ہو گیا۔
وہ گناہوں میں نہیں ہے، وہ نیکی میں آ گیا. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ. وہ اس نے توبہ کی، ایمان لایا، نیک عمل کیے، پھر صحیح رستہ اختیار کیا. اللہ کہتا ہے انی لغفار، میں اس کے لیے معاف کرنے والا ہوں. وآمن وعمل صالحا، پہلے توبہ کی، پھر ایمان لایا، پھر نیک عمل کیے، ثم اهتدیٰ، پھر راہ راست پہ رہا. وانی لغفار، میں اس کو معاف کروں گا، بے شک میں ان کو معاف کرنے والا ہوں. تو آئے میرے بزرگوں، بھائیوں، آج کے جمعے میں، آج کی حدیثوں آیتوں میں اپنا ذہن بنائے توبہ کے اوپر، اپنا دل لگائے توبہ کے اوپر. میں اور آپ مل کے اپنے دن کا کچھ حصہ مختص کریں توبہ کے لیے. اپنی مصروفیات میں سے ایک مصروفیت کیا رکھیں گے؟ توبہ. جب ہمارا یقین ہے کہ ہمارا رب رات کو اپنے دونوں ہاتھ پھیلاتا ہے، وہ کہتا ہے کوئی دن کے گناہ کرنے والا ہے معافی مانگ لے، میں اس کو معاف کر دوں. میرا رب دن کو ہاتھ پھیلاتا ہے، رات کا گناہگار معافی مانگے، رات کو ہاتھ پھیلاتا ہے، دونوں ہاتھ. اور کوئی ہے؟ میں نے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے. جب تک سورج مغرب سے غروب نہیں ہوگا یہ توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوگا. حتیٰ کہ موت کا غرغرہ آ گیا، موت حلق میں پھنس گئی، پھر توبہ بند ہو گئی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے جنہوں نے موت تک گناہ کیے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، ان کی کوئی توبہ نہیں. وہ تو موت تک باز ہی نہیں آتے، وہ کفر میں مر گئے، ان کی توبہ نہیں ہے. توبہ آج ہے، آج مہلت ہے، کل نہیں ہوگی. زمین سے آسمان تک گناہ کریں، میرے گناہ آسمان کی بلندیوں کو چھو لیں، اور پھر میں توبہ کروں. کیا فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اتنے گناہ کر. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں کو چھو جائیں. پھر تو کہے اے اللہ معاف کر، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، آئندہ ہم نے اس کی اصلاح کرنی ہے. اللہ کی شان ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروا رہے ہیں، اپنی تعریف بیان کر رہے ہیں. الم یعلموا ان اللہ هو يقبل التوبہ عن عبادہ ویأخذ الصدقات. کیا تم نہیں جانتے اللہ وہ ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے؟ اپنا تعارف کروایا، ان اللہ هو يقبل التوبہ عن عبادی. اللہ تعالیٰ تم جانتے نہیں ہو اللہ وہ ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے. ہم سمجھتے ہیں فلاں بندے کے پاس جائیں گے پتہ نہیں وہ کام کر سکے گا، نہیں کر سکے گا. کہتے نہیں وہ کر لے گا. اللہ کہتا ہے میں وہ ہوں جو توبہ قبول کرتا ہوں، میں کر سکتا ہوں. کر تو صحیح، تو کر. تم جانتے نہیں ہو ان اللہ هو يقبل التوبۃ عن عبادہ ویأخذ الصدقات. صدقے بھی وہ قبول کرتا ہے اور توبہ بھی. ہم کہتے ہیں پیسہ روپیہ دے اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. اللہ کہتا ہے ہاں کرتا ہوں، مگر بندے جب تو ندامت کرے گا، جب تو آنسو بہائے گا، جب تو روئے گا، جب تو استغفار کرے گا، یہ بھی میں ہی قبول کروں گا، یہ بھی میں ہی قبول کروں گا. هو الذی يقبل التوبۃ عن عبادہ ویعفو عن السیئات ویعلم ما تفعلون. اللہ وہ ہے جو بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، توبہ قبول کر دیتا اور گناہ. اللہ کی قسم میرے بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں، ہم اللہ کی رحمتوں کو پڑھتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کس قدر محبت کرتا ہے ہمیں اس کا احساس ہی نہیں. سچی بات، ہمیں اللہ کا اس کا احساس ہی نہیں ہے. جو پکار پکار کے قرآن میں کہتا ہے میں نے تمہیں کیوں عذاب دینا ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم.
मैं तुम्हें अजाब दे के क्या लूंगा, उसे अजाब पसंद नहीं है, उसे तौबा पसंद है। उसे सजा पसंद नहीं है, उसे माफी पसंद है। मगर कितने हैं जो अल्लाह के सामने आ जाएं, या अल्लाह बस मेरी तौबा में, अपने गुनाहों को गिने, अपने जुर्मों को गिने, बताएं मैंने जुर्म किए, मैं अपने बताऊं, आप अपने बताएं, लोगों को ना बताएं, लोगों को ना बताएं, उसको बताएं जो तौबा को कबूल करता है। व याफू अनिस सय्यियात, और कल इन गुनाहों को जिनकी तौबा की होगी, इन गुनाहों के बदले क्या देगा? युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, अल्लाह ताला गुनाहों को नेकियां बना देगा। बंदा गुनाह लेके आएगा, अल्लाह नेकियां देगा। ये उसके लिए है जो अल्लाह के सामने गिर पड़े, जो रो पड़े, कहे या अल्लाह तू मुझे माफ कर दे, ऐ अल्लाह मैं तौबा का हक अदा करता हूं। फ़इन्नल्लाह यतूबु इलल्लाहि मताबा, जो तौबा का हक अदा करे, जो तौबा का हक अदा करे, जो पक्की तौबा करे। अल्लाह अकबर। मैं आपसे कह रहा था कोई नेकी का प्रोग्राम बनाए, कोई दिल बदलने की बात करे, कोई बेचैन हो जाए तौबा के लिए, अभी तक नहीं है। और मसले तौबा के बगैर हल नहीं होने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इस्तिग़फ़ार को अपना लेता है, जो तौबा को, बख्शिश को अपना लेता है, अल्लाह ताला इसको गमों से निजात दे देते हैं, इसकी तंगियों को दूर कर देते हैं, इसको वहां से रिस्क देते हैं जहां इसने सोचा नहीं होगा। 3 इनाम तौबा वाले को मिलते हैं, 3 इनाम तौबा वाले को मिलते हैं, इसकी तंगी दूर हो जाती है, इसको इसके गमों की निजात मिल जाती है, इसको इतना रिस्क मिलता है कि सोच नहीं सकता। अमल क्या है? तौबा, तौबा, तौबा। आज हर कोई परेशान है, हर कोई गमज़दा है, हर कोई तंगी में है, हर कोई रिस्क रोटी को रोता है, कारोबार मजदूरी को रोता है। का इस्तिग़फ़ार कर, अल्लाह ताला तेरे सारे मसले हल करे। का गमों से निजात दे देगा, तंगियों को दूर कर देगा। तेरा रिस्क इतना होगा कि तेरी सोच नहीं होगी। मगर किसके लिए? जो इस्तिग़फ़ार को मामूल बनाएगा, जो इस्तिग़फ़ार करेगा, जो तौबा करेगा, जो अल्लाह के सामने झुकेगा। मुसलमानों, तौबा की जुस्तजू पैदा करें। आज हर कोई कह रहा है मेरे बड़े गुनाह हैं, इतने गुनाह हैं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मेरी कौन सी तौबा है? जुस्तजू वालों की तौबा है। मेरे बुजुर्गों, भाइयों, किसकी तौबा है? जिनकी जुस्तजू है, जो परेशान है हमने तौबा करनी, उनकी हो जाएगी। मेरे नबी ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही बुखारी में हदीस है, बड़ा समझा के गए, फरमाया जब चोर चोरी करता है तो ईमान उसमें से निकल जाता है, जब जानी जिना करता है तो ईमान उसके दिल से निकल जाता है, जब कातिल कत्ल करता है तो ईमान उसके अंदर से निकल जाता है, शराबी जब शराब पीता है तो ईमान, आपने अपनी उंगलियों को यूं डाला फिर निकाल दिया, क्या यूं दिल से ईमान निकल जाता है? यहां तक तो हदीस समझ आ गई ना। चोर चोरी करे, ईमान से फारिग हो गया उस वक्त। कातिल कत्ल करे, ईमान से फारिग। शराबी शराब पिए, ईमान से फारिग। जानी जिना करे, ईमान से फारिग। उंगलियों में उंगलियां डाल के निकाल दी, कहा दिल से यूं ईमान निकल जाता है। मगर आगे क्या फरमाया? क्या फरमाया? जब तौबा करता है फिर उंगलियां डाल दी अंदर, फिर दोबारा उंगलियां अंदर डाल दी। कहा जब वो तौबा कर लेता है, ईमान दिल में दोबारा। जानियों को कहा, शराबियों को कहा, कातिलों को कहा, बदकारों को कहा, जब वो तौबा कर लेता है, ईमान दोबारा दिल में आ जाता है। का दिल गुनाह से स्याह होते हैं, ये तौबा करता है चमक जाता है।
یہ توبہ کرتا ہے پھر چمک جاتے ہیں. میں توبہ کی جستجو کی بات کر رہا تھا. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرما دے, ہم توبہ کی جستجو میں چلیں. آدمی تھا 99 قتل کر دیے. کتنے؟ 100. مجھے پتا ہے اس پوری مجلس میں, اس پورے پاکستان میں, اس سارے عالم اسلام میں کوئی اکا دکا شاید ہو جس نے 99 قتل کیے ہوں. نہیں ہوں گے اتنے بڑا گنہگار کوئی نہیں ہوگا, مگر اس کو توبہ کی جستجو لگ گئی. اس کو اللہ کی صلح کی, اس کے اندر ایک بے چینی ہو گئی, میری اللہ سے صلح ہو جائے, میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں, اللہ مجھ سے صلح کر دے. میرا اللہ مجھ سے ناراض ہے, میں اس کو منا لوں. اس کے من میں, اس کے دل میں ایک تڑپ لگ گئی, میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو, میں اس کو منا لوں. 99 قتل کر کے ایمان جاگ گیا. خوش قسمت ہے جن کے ایمان جاگ جائے, جن کو تڑپ لگ جائے. 99 قتل کر دیے. راہب کے پاس چلا گیا, لوگوں سے پوچھتا ہے کوئی بستی میں ایسا آدمی ہے جو مجھے بتا دے کہ میری توبہ ہو سکتی. مسلمانوں وہ کیسا دین ہو گیا جن میں پتہ نہیں تھا توبہ ہو سکتی کہ نہیں. ہم جس دین کے وارث ہیں, قرآن پڑھتے جائیں, قرآن پڑھتے جائیں, توبہ کے دروازے کھلتے جاتے ہیں. 70 سال کا توبہ کا دروازہ اللہ تعالیٰ کا قیامت تک کھلا ہے. آ جاؤ. کسی کو منع نہیں ہے, کسی کو منع نہیں ہے. شرک بھی معاف ہے, شرک بھی معاف ہے اگر مرنے سے پہلے توبہ کر لی. لوگ کہتے ہیں شرک کی معافی نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ شرک کی حالت میں مر گیا تو معافی نہیں ہے, شرک کی توبہ کر لی تو. یہ صحابی کون تھے؟ شرک سے توبہ کرنے والے تھے, بتوں کو پوجنے والے تھے, بیٹیوں کو دفن کرنے والے تھے, قتل کرنے والے تھے. اللہ تعالی نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ بنایا تو عمل کیا تھا؟ توبہ تھی. کوئی کتنا بھی گنہگار ہے, آج مہلت ہے تو ہمارا معاشرہ خراب ہے. 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی, خوش قسمت ہے وہ بلی جو 900 چوہے کھا کے حج کر لے, خوش قسمت ہے وہ. ایک آدمی کہتا ہے ساری زندگی رشوت کھاتے ہیں, ساری زندگی جھوٹ بولتے ہیں, بوڑھے ہو کے مسجد میں آ جاتے ہیں. میں نے کہا خوش قسمت ہیں, ابھی مرے نہیں ہیں, ابھی موت نہیں آئی, ابھی موت نے پکڑا نہیں, ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے. تمہیں فتویٰ دینے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. 99 قتل کر دیے, توبہ کو ڈھونڈتا ہے. کسی نے بتایا, راہب کے پاس چلا گیا, اس سے کہتا 99 قتل کیے ہیں, کبھی معافی ہو جائے گی. وہ بھی ہمارا کوئی مفت کا مفتی ہوگا نا, کچھ علم کے مفتی اور کچھ مفت کے مفتی ہیں. وہ ہر وقت فتوے دیتے, مفت میں دیتے ہیں نا. وہ علم کے ساتھ فتویٰ نہیں دیتے, وہ فری کے فتوے دیتے ہیں. تو نہیں بخشے جانا, اللہ واسطے بس کرتے ہیں, بہت ہو گیا یہ, تمہاری توبہ قبول نہیں ہونی. تم جتنی مرضی معافیاں مانگو, اللہ نے تمہیں معاف نہیں کرنا. بند کر دے یہ گفتگو. کسی کو کسی کے بارے میں یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ تیری معافی نہیں ہونی, تمہیں اللہ نہیں بخشے گا. اس کی فکر نہ کرے, اپنی کریں. میں بخشا جاؤں گا کہ نہیں؟ یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء. وہ جس کو چاہے عذاب دے اور جس کو چاہے بخش دے. اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, اس کو کسی کی عبادتوں کی پرواہ نہیں ہے. ساری دنیا متقی بن جائے, اس کی بادشاہت میں ذرہ برابر کا اضافہ نہیں کر سکتی. ساری دنیا کافر ابلیس بن جائے, اس کی بادشاہت میں ذرہ برابر کمی نہیں کرتی. اور ساری دنیا کو سب کچھ دے دے, اس کے خزانوں میں اتنی کمی نہیں ہے جتنی سمندر میں لگی ہوئی سوئی کے پانی کو کمی آئے, اتنی بھی کمی اس کے خزانوں میں. اس کو کیا پرواہ ہے کسی کو بخشنے میں؟ فتوے مت دیں. وہ کہنے لگا 99 کا قاتل بھی کبھی معاف ہوتا ہے. تیری نہیں معافی, تو نے 99 مارے ہیں, 99 کے قاتل معاف نہیں ہوتے.
उसने कहा अच्छा मैं माफ नहीं होता तो तू भी नहीं बचता। उसको भी फटका दिया, 100 पूरे कर दिए। मगर बंदा ऐसा अजीम था, अल्लाह की कसम, कोई कमाल दर्जे का आदमी था। 99 कत्ल करके तौबा को चला। उसने तौबा के बारे में कहा तेरी होनी नहीं। गुस्से में उसको भी कत्ल कर दिया। सुकून फिर भी नहीं आया, सुकून फिर भी नहीं आया, चैन फिर भी नहीं आया। फिर भी वो अंदर से उबल रहा है, अंदर से परेशान है, कोई तौबा हो जाए। फिर पूछता फिरता है कोई तो हो जो मुझे तौबा का रास्ता बताए। लोगों से पूछता है, किसी ने जमाने के आलिम के पास भेजा जो उस वक्त का बड़ा आलिम था, उसके पास जाके कहता 100 मार दिए। वो कहता अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो, तौबा कर। और अगली बात क्या कहता है? गुनाहों की बस्ती छोड़ दे। मेरे बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, मेरे और आप समेत कितने हैं जो ये कहे मैं तौबा भी करता हूं और गुनाहों की बस्ती भी? लोग वही हैं, गाने बाजे वही हैं, माहौल वही है, दोस्त वही है, और गुनाहों की बस्ती वही है, और तौबा भी वही है। ये नहीं थी तौबा, उसे कहा तौबा कर, गुनाहों की बस्ती को छोड़ दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं दोस्त बनाने में एहतियात करो, इंसान अपने दोस्तों के दीन पर होता है। जिस सोबत में आप रहेंगे वही आपका दीन होगा। अच्छे लोगों में रहें। सारी रात ताश वालों के पास बैठना, गंदे लोगों के पास बैठना और फिर कहना मैं ठीक नहीं होता, यह नहीं होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक आदमी खुशबू वाले के पास बैठता है, वो उसको खुशबू की शीशी दे देगा। अगर खुशबू ना दी तो महक तो आती। ये सोबत के बारे में कहा। और एक आदमी लोहार की भट्टी के पास बैठता है, जरूर कोई ना कोई कोयला, कोई चिंगारी इसके कपड़ों को जला देगी। अगर आग ना भी लगी तो धुआं तो इसके नसीब में जरूर है। जो खुशबू वाले के पास बैठेगा उसे खुशबू मिलेगी, और जो भट्टी वाले के पास बैठेगा उसे आग और धुआं मिलेगा। तौबा के लिए जरूरी है कि बंदा अपने माहौल को बदले, अपने गिरदो पेश को बदले। का गुनाहों की बस्ती को छोड़ और कहां चला जा? नेक लोगों की बस्ती में चला जा। बस्ती का नाम बताया, फलां बस्ती में चला जा, गुनाहों को छोड़ नेक बस्ती में जा। वो बंदा चल पड़ा तौबा करके, या अल्लाह हमें भी वैसे ही बंदा बना दे। हमने 100 कत्ल नहीं किए, इससे कम है, मगर अल्लाह बड़े गुनाह किए हैं। ऐ अल्लाह हमें वो दिल दे दे जो उस आदमी का था। ऐ अल्लाह हमें वो तड़प और जुस्तजू लगन दे दे तौबा की जो उस आदमी की थी। चल पड़ा अपनी बस्ती छोड़ के नेक लोगों की तरफ। सिर्फ तौबा की है, अमल कोई नहीं किया, सफर शुरू किया है तौबा का। अभी रास्ते में था, मौत आ गई। फरिश्ता मौत का आया, जान ले ली। अजाब के फरिश्ते आ गए, जन्नत के फरिश्ते आ गए। अजाब के फरिश्ते कहने लगे 100 का कातिल है, हम लेके जाएंगे। जन्नत वाले कहने लगे तौबा वाला है, हम लेके जाएंगे। झगड़ा चल पड़ा। अजाब वाले कहते हमारा है, जन्नत वाले कहते हमारा है। वो कहते 100 का कातिल है, वो कहते तौबा वाला है। अल्लाह ताला ने एक और फरिश्ता भेजा सालिस बना के, का जमीन नापो, जमीन नापो, जिसके करीब है कर दो। हदीस में लिखा है उसको उस नेक बस्ती से ऐसी दिलचस्पी थी, उसको नेकी की जानिब ऐसी रग़बत हुई कि गिरता गिरता भी कमर के बल घिसट के अपने इस पे छाती पे घिसट के तौबा वालों के करीब हो गया। मरता मरता भी घिसट के किसके करीब हुआ? जान निकलते निकलते भी 2 कदम और आगे चला गया। बाज रिवायात में लिखा अल्लाह ने जमीन को सुकेड़ दिया और उसको नेकों के करीब किया और उसको बख्श दिया।
तौबा वालों के बड़े वाकयात हैं वल्लाह, हदीस से भरी पड़ी हैं, कुरान भरा पड़ा है, कौमों की तौबा भरी पड़ी है। मेरी आप बुजुर्गों भाइयों बहनों को दावत है, सूरह हूद को पढ़िएगा जाके, कौमों की तौबा के तस्करे इस सूरत के अंदर, नबियों की तौबा के तस्करे इस सूरत के अंदर। एक आदमी बूढ़ा हो गया, मरने को आया, अपने बच्चों को इकट्ठा करता, अपने बेटों को, कहता मैं मरने लगा हूं, मेरे रब ने अगर मुझे पकड़ लिया ना, मैंने इतने गुनाह किए हैं, वो मुझे इतना अजाब देगा, शायद दुनिया में उसने किसी को इतना अजाब ना दिया हो जितना मुझे देगा। ये डरने वाले थे अल्लाह से। कहता मैं इतना गुनहगार हूं, मेरे रब ने मुझे पकड़ लिया ना, तो वो मुझे इतना अजाब देगा, वो मुझे इतना अजाब देगा, शायद दुनिया में किसी को इतना अजाब ना दिया हो जितना वो मुझे अजाब देगा। मेरे रब ने अगर मुझे पकड़ लिया ना, मैं बड़ा गुनहगार, मरने लगा बुढ़ा। मत कहें कि बुढ़ापे की तौबा नहीं है, आज तौबा कर लें, आज अल्लाह से माफी मांग लें। दुनिया में जिनकी हक तलफी की उनसे माफी मांग लें, दुनिया में जिनके हिस्से दबाएं उनको वापस कर दे, जिसके पैसे लिए उसको माफी वापस कर दे, जिसकी गीबत की उससे माफी मांग ले, जिसकी चुगली की उससे माफी मांग ले, फिर सबसे बढ़ के अपने रब से माफी मांग ले। आज अल्लाह ताला धो के नहला के साफ सुथरा चमका देगा। आज तौबा आज दिल से कह, बेटों से कहता अच्छा अब जब मैं मरूं तो क्या करना, मेरी लाश को जला देना, फिर उसकी राख बना लेना, फिर उसको हवा में उड़ा देना, फिर उसको पानी में बहा देना। जिस दिन हवा खूब तेज चले, मैं आधी राख उसमें बहा देना और आधी राख को ले जाके दरिया में बहा देना। अल्लाह ताला ने उसको जमा किया। अल्लाह ताला कादिर और कदीर है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा था अल्लाह ताला तुम मुर्दे को जिंदा किस तरह करेगा। 4 परिंदों का वाकया हुआ, इस हदीस में बयान किया। अल्लाह ताला उसके जर्रात को जमा करेगा, हवा को हुक्म देगा लाओ, पानी को हुक्म देगा लाओ, वो जर्रे इंसान बनेंगे। अल्लाह ताला उससे पूछेंगे तूने ये क्यों किया था, बता तूने अपने बच्चों को ये क्यों कहा था कि मुझे जला देना फिर मुझे उड़ा देना, और अल्लाह ताला मुझे पकड़ेगा, ऐसा अजाब देगा ऐसा किसी को दिया नहीं होगा, मेरे पास नेकी कोई नहीं। कहता अल्लाह ताला तेरे सामने खड़े होने से डर गया था, ऐ अल्लाह मैं तेरे सामने खड़े होने से डर गया था। अल्लाह ताला ने उसको बख्श दिया। कहता अल्लाह मुझे डर लग गया था, अल्लाह मुझे डर लग गया था, मैं तेरे सामने किस तरह खड़ा हूंगा, मुझे डर लग गया था, मैंने इसलिए सोच के कहा मेरी लाश को बेनाम कर देना, शायद पेश ही ना हो। वो कहता मैं डर गया था, कोई है जिसका दिल आज ऐसा हो जिस तरह उस शख्स का दिल था। एक आदमी था, ताजिर था, वो लोगों को कर्ज देता था, फिर वो अपने गुलामों को कर्ज की वसूली के लिए भेजता था, फिर उनसे कहता था तंग दस्त को माफ कर देना, आप मकरूदों को मोहलत दे देना। आज हम लोगों को माफ करेंगे, मुमकिन है कल मेरा रब मुझे माफ कर दे। वो लोगों को इसलिए माफ करता था कि मेरा रब मुझे माफ कर दे, कि मेरा रब मुझे माफ कर दे। वो लोगों की माफिया करता फिरता था, वो लोगों को पैसे माफ करता फिरता था, मेरा रब मुझे माफ कर दे। मगर आज तौबा की वो शक्ल नहीं है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरी उम्मत में 4 काम जहालत के बाकी रहेंगे। जहालत की 4 चीजें मेरी उम्मत में बाकी रहनी है, ये खत्म नहीं होनी। अपने हसब पे फख्र करना, मेरी कौम मेरी बरादरी तो साडा पता नहीं, दूसरे के नसब पे तान करना,
अपने आप को ऊंचा समझना और दूसरे को नीचा समझना, सितारों से बारिश तलब करना। बड़े बड़े पढ़े लिखे हैं, क्या पढ़े लिखे हैं, जो आज भी अखबार में सितारे निकाल के बैठे होते हैं, आज भी पूछ रहे थे आपका स्टार क्या है। सफर करने से पहले, कारोबार करने से पहले आज के जमाने में सितारों को ढूंढते हैं, सितारों से। और चौथे लोग, चौथी औरतें, मरने वालों पर नोहा करने वाली, आवाजें निकालने वाली, शोर शराबा करने वाली, जजा फजा करने वाली। फरमाया नोहा करने वाली औरत अगर तौबा के बगैर मर गई, ये मैयतों पे शोर करने वाली तौबा के बगैर मर गई, अल्लाह ताला इनको गंदक की कमीज पहनाएगा। एक हदीस में है तारकोल की, ये जिससे सड़कें बनती, इसकी कमीज पहनाएगा। और जो चादर इनके ऊपर देगा, जो दुपट्टा इनके ऊपर देगा, वो क्या होगा? खारिश का। ये इतनी सी बात है, जिसकी तौबा ना की तो ये सजा है। तो जिसने पूरी जिंदगी की तौबा ना की, इतना सा अमल बता दिया, ये चार चीजें गिनवाई, आखिरी चीज के बारे में गया, सिर्फ ये नोहा करने वाली, ये पीटने वाली औरतें, ये शोर शराबे करने वाली फौतगी पे औरतें, अगर इन्होंने तौबा ना की, गंदक की कमीज पहनेगी, गंदक की कमीज पहनेगी, और जो चादर दुपट्टा इनको मिलेगा वो खारिश का होगा। एक अमल की तौबा ना की, जिसने जिंदगी की तौबा ना की। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने शराब पी 40 दिन की इसकी नमाज नहीं होती। फिर उसने शराब पी 40 दिन की इसकी नमाज कबूल नहीं होती। फिर वहां तीसरी और चौथी दफा इसने शराब पी, अल्लाह ताला इसकी तौबा को कबूल नहीं करेगा और इसको खब्बाल के चश्मे का पानी पिलाएगा। साहबा ने कहा यह खब्बाल क्या है? का जहन्नमियों की पीप, ये दुनिया के नशे करते थे, आज इनको जहन्नमियों की पीप पीनी पड़ेगी। इस तरह तौबा समझाते थे, इस तरह तौबा समझाते थे, यूं तौबा करना, यूं तौबा करना, यूं तौबा करना। आपने फरमाया जिसने दुनिया में शराब पी और फिर तौबा ना की, वो जन्नत की शराब, उसको जन्नत की शराब नहीं मिलेगी। शराब उसने दुनिया में पी, तौबा ना की, जन्नत की शराब से महरूम हो गया, जन्नत की शराब से महरूम हो गया। यहां तो सारी जिंदगी गुनाहों में, ना सजदे, ना चीजें, ना कुछ, तौबा ही नहीं है, तौबा ही नहीं है। वहां बड़े लोग थे, अम्मा जी आयशा कहती रज़ी अल्लाहु अन्हा, मैंने एक गद्दा खरीदा, उनको तौबा का बड़ा शौक था, हर वक्त ही ना तौबा करते थे। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो मैंने आपके चेहरे की नागवारी को देखा, नापसंदीदगी को देखा। आप आके खड़े हो गए, मैंने वो गद्दा बिछाया हुआ था, बिस्तर, आप खड़े हो गए। कहती जुमला सुने, जुमला सुने, गलती नहीं पूछी पहले, गलती बाद में पूछी। कहती मैं अल्लाह से माफी मैं अल्लाह से तौबा करती हूं, मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफी मांगती हूं, मुझसे गलती क्या हुई है। पहले गलती पूछी, बाद में तौबा, कि पहले तौबा कर रही। कहती मैं अल्लाह से तौबा करती हूं, मैं उसके नबी से माफी मांगती हूं, मुझसे गलती क्या हुई। सही बुखारी उठा के देखे, गलती का सवाल बाद में है और तौबा। कहते मैंने चेहरे की खफकी देखी, मैंने चेहरे की नापसंदीदगी देखी, मुझे समझ ही कुछ नहीं आई। मैंने कहा मैं अल्लाह से माफी मांगती हूं, मैं आपसे माफी मांगती हूं, हुआ क्या है, गलती क्या। कहा ये गद्दा कहां से आया? कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो मैंने खरीदा है, आप इस पे बैठेंगे, आप इस पे टेक लगाएंगे। कहा इस पे तस्वीरें हैं, अल्लाह ताला दर्दनाक अजाब देगा, इस अल्लाह ताला इसकी दर्दनाक अजाब देगा इसके ऊपर, और अल्लाह ताला कहेगा इसमें जान डालो, क़यामत का दर्दनाक अजाब होगा इसके लिए। कहती मैंने उठा दिया, मगर कमाल है, चेहरा नागवार देखा, फौरन कहती मैं अल्लाह से तौबा करती हूं,
उम्मुल मुमिनीन है, जिनके घर में वही आती थी, जिनके घर में वही आती थी, जिनके हुजरे में कुरान उतरता था, जिनके लिए मैं कहता हूं कभी वाकया पढ़िएगा अम्मा जी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार उनसे कहते तौबा कर आयशा, तौबा कर, गलती नहीं हुई थी, तौबा कर। आए मैंने जो आयत पढ़ी थी खुतबे में उसके बारे में कुछ कह दूं। व अला सलासतिल्लज़ीना खुल्लिफू हत्ता इज़ा ज़ाक़त अलैहिमुल अर्दु बिमा रहबत व ज़ाक़त अलैहिम अनफुसुहुम व ज़न्नु अल्ला मलजा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि। वो 3 लोग जिनके ऊपर जमीन अपनी वुसअत के बावजूद तंग कर दी गई, उनकी जामिया उनके ऊपर तंग हो गई, मगर उनका यकीन था कि अल्लाह के सिवा पनाह कोई नहीं। फिर अल्लाह ने उनके लिए तौबा उतारी और बेशक अल्लाह ताला माफ करने वाला है और रहम करने वाला है। वो कौन थे? काब बिन मालिक थे, हिलाल बिन उमैया थे, हिलाल थे, ये लोग थे, मिरारा बिन रबी थे, हिलाल बिन उमैया थे, ये 3 लोग थे। काब कहते रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, मैं बदर और तबूक के अलावा हमेशा जिहाद में शरीक रहा, 2 जंगों में नहीं शरीक हो सका, मगर आदमी में वो हूं जो बैत उक़बा में जब 12 लोग थे मैं शरीक था, जब 70 लोग थे मिना में मैं शरीक था, जब अंसार के लोग बैत करने के लिए मक्का में गए थे मैं उन बैत उक़बा के लोगों में से हूं। क्या जलील क़द्र साहबी होंगे। कहते हैं बदर में मैं इसलिए शरीक नहीं हुआ कि बदर में शरीक होने का हुक्म नहीं था। आप तो काफिले तिजारत के लिए गए थे, सामान्य तिजारत के लिए गए थे, आप जिहाद के लिए नहीं गए थे। जब वहां पे जाके मार का अल्लाह ने करवा दिया, कुरान मजीद में नाजिल किया, और जब आप वापस आए तो किसी से ये पूछा नहीं कि तुम क्यों नहीं गए, और किसी से ये कहा नहीं कि तुम किस वजह से रुके, पूछा नहीं था। और आप तमाम गज़वात के अंदर खामोशी इख्तियार करते थे, मगर ये तबूक ऐसा मार्का था जिसमें आपने तौरिया नहीं किया, खामोशी नहीं की, ऐलानिया लोगों से तैयारी से के लिए कहा। कहने लगे अल्लाह की शान है, जितनी फरावानी वुसअत मेरे पास तबूक के दिन थी कभी इतनी नहीं थी। मेरे पास 2 ऊंटनियां थी, मेरे पास माल था, चीजें थी, तैयारी थी। कहते आजमाइश भी पड़ी थी, साए घने हो गए, फल बेपनाह आ गया बागों में, और मुझे ये चीजें पसंद थी, सबको पसंद थी। फल पक गए, साए आ गए, जिहाद में निकलने का हुक्म आ गया। कहते मैं नियत से तैयार था, लोगों को हुक्म हो तैयारी करो, वो करने लग गए। मैंने कहा मेरे पास ऊंटनियां हैं, आज करता हूं, कल करता हूं, आज करता हूं, कल करता हूं, निकलता था फिर आ जाता, तैयारी ना कर सका। हत्ता कि जुमेरात का दिन आया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को लेकर निकल गए। कहते मेरे पास भी मेरी नीयत थी, मैं बाजार में गया, मैं तैयारी त्यूरी करूं, चीजें खरीदूं, मैं पीछे पहुंच जाऊंगा, मेरे पास ऊंट नहीं है। कहते मगर उस दिन बिना कोई मुझे समझ ना आई, मैं वापस आ गया। कल निकलूंगा, परसों, हत्ता कि मैं पीछे रह गया। मैं मदीने की गलियों में फिरता था, 80 लोग कहते मदीने में थे, 80 लोग, और उनमें अक्सर वो थे जिनके ऊपर निफाक की बातें थी कि मुनाफिकीन है, या कुछ माजूर थे, मरीज थे। मदीने में मर्द कोई नहीं था, 80 लोग थे जिनका निफाक वाज़े था, या मैं था। कहता मुझे अपनी आप काट खाने को आता था, मेरा बनेगा क्या। मैं मदीने में फिर रहा था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक में पहुंच गए, 600 किलोमीटर से ज्यादा। पहुंचने वाले पहुंचे भी। भाई और लोगों की फिक्र किया करें, कौन है कौन नहीं है, कौन मस्जिद में आया कौन नहीं आया, मेरा खानदान का कौन बंदा नमाज पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा, फिक्र करें लोगों की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी मोहब्बत थी साहबा से, इतनी पहचान थी। दूर सहरा में गर्द उड़ती आ रही है, कोई शाह सवार आ रहा है, किसी को नजर नहीं आ रहा कौन आया, और आप क्या फरमा रहे, मुझे लगता कौन आ गया। कहते हैं मुझे लगता अबू खैसमा आ रहा है रज़ी अल्लाह ताला। इनको भी इनकी बीवियों की वजह से रुके थे, मगर जब घर में पहुंचे ना,
घर की ठंडक, पानी देखा, फल देखे, बीवियां खाने देखे, का अल्लाह के नबी जिहाद में हो, अबू खैसमा घर में हो, नहीं, सामान लाओ मैं जाता हूं। उड़ते हुए पहुंचे, अभी पहुंचे नहीं थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूर से देख के कहते हैं मुझे लगता है कि अबू खैसमा पहुंच गया। 30,000 के लश्कर में पूछते हैं काब की तरह। ये होते हैं साथी जिनको कभी पता ही नहीं कि कौन मस्जिद में आया, कौन नहीं आया, किसने कुरान बच्चे ने पढ़ा आज, किसने नहीं पढ़ा। ये बेफिक्र लोग हैं। मुझे काब नहीं मिलते। तो बनु सलमा के एक आदमी ने, इनके कबीले के आदमी ने कहा, ओ जी उसके पास आजकल बड़े कीमती कपड़े हैं, उसके तो नखरे बड़े हैं आजकल, उसने कहा जिहाद में आना था। ऐसे ना किया करें। माज बिन जबल खड़े हुए रज़ियल्लाहु अन्हु, इस आदमी ने बुरी बात कही है, हमने तो जिंदगी में उसके अंदर खैर के सिवा कुछ नहीं देखा। कोई एक आदमी आपके भाई के बारे में कोई उल्टी सीधी बात करे तो हमने हाँ में हाँ मिलानी है या उसका दिफा करना है? हम तो शामिल होते हैं, हाँ जी एन जी जे, उसको नहीं परवाह पर वो आजकल हमारी, वो तो सेठ हो गया। कहने लगे उसको तो अपनी चादरों की बड़ी फिक्र रहती है, उसके पास तो फरावानी है। एक आदमी ने कहा, माज खड़े होकर कहने लगे नहीं नहीं, हमने सिवाय खैर में के उसमें देखा ही कुछ नहीं। कहते यहां के खबर आने लगी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ रहे हैं। जब आप वापस आते मदीने में तो सबसे पहले कहां जाते? मस्जिद में 2 रकत नमाज पढ़ते, फिर लोगों से मुलाकात करते, फिर घर जाते। अल्लाह करे हम घरों से मस्जिद में आ जाएं, मस्जिद वीरान। कहते हैं कि लोग जो नहीं गए थे, मैंने पता किया, वो जाने लगे। वो अपने बहाने करते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए इस्तिगफार करते, उनकी ज़ाहिरी बात को कबूल करते और उनकी खुफिया बातें किसके ऊपर छोड़ देते? अल्लाह पे छोड़ देते। कोई हमें भी ये तरबियत कर दे, जो कोई कह रहा सुन लो, नहीं अंदर ती गाल कर, अंदर तेरे की ये मिनट पता है तेरे अंदर। मेरे नबी ने किसी का अंदर नहीं कहा, जो वो ज़ाहिरी बात करते थे उसको कबूल कर लेते और जो उनकी बातनी बातें थी वो किस पे छोड़ देते? पता था ये मुनाफिक है, ये झूठ बोल रहे हैं, मगर कहते थे चलो अल्लाह ताला तुम्हें माफ करे, अल्लाह ताला तुम्हें माफ करे, अल्लाह ताला तुम्हें माफ करे। वो आके बहाने करते, आप उनके बहानों को सुनते, फिर वो ऐसे बहाने थे जो अल्लाह ने कुरान में नाजिल किए कि ये बहाने कर रहे हैं। ख्वाब कहते हैं अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते तो मुझे इतनी जुबान चलानी आती थी, इतनी तकरीर करनी आती थी कि मैं बात को घुमा के ऐसा पेश करता कि मैं भी माफ हो जाता। मुझे भी बड़ी जुबानदानी आती थी, मैं कोई ना कोई बहाना कर सकता था, मगर मैंने सोचा कि आज मैं सच कहूंगा। तौबा करना बहुत बड़ा काम है, इसका प्रोसेस बड़ा है, इसमें आजमाइश बड़ी है। तौबा की है, सूद छोड़ा, कारोबार बंद हो गया, घर में फाके आगे, हो सकता है। नमाज में आने लगा हूं, दीन में आने लगा हूं, रिश्ते टूटने लगे, हो सकता है। तौबा तंगियों में ले आए, हो सकता है। इनकी हुई थी। कहते कि मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा, आपने मुझे देखा, मुस्कुराए, मगर उस मुस्कुराहट में खफगी थी, नाराजगी थी, गुस्सा था। मुझे मुस्कुराहट समझ आ गई थी, तो मुस्कुराहट मगर थी गुस्से वाली। काका आप तुम्हें क्या हुआ? मैंने सच सच बता दिया, मेरे पास सवारी थी, मेरे पास फरावानी थी, मैं पीछे रह गया। कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मैं झूठ बोलूं आप खुश हो जाएंगे, मगर मेरा अल्लाह मुझसे नाराज हो जाएगा। अगर मैं सच बोलता हूं, मुझे पता है आप नाराज हैं, मगर मेरा अल्लाह आपको इत्तला जरूर दे देगा कि सच क्या था। काका आपने सच कहा। कहते मैंने ये बात कही, काका आपने सच कहा, अब तुम्हारा फैसला अल्लाह करेगा। कहते मैं कबीले में आया, कबीले के लोग मुझसे लड़ पड़े कि जा वापस जा, कोई तौबा इस्तिगफार करा के जान छुड़ा ले, कोई कहानी बना जाके कह दे। अब फैसला क्या आएगा तुमने अपने खिलाफ, तुम बर्दाश्त कर लोगे? क्या मसला, क्या मौक़िफ़ आने वाला है? अभी जाके रफा दफा करो मसला और आप कोई बात कहो, अल्लाह के नबी को राजी कर लो, तुम कर सकते हो, तुम्हारा बैकग्राउंड में कोई गुनाह नहीं है।
तुम्हारा बैकग्राउंड क्लियर है। ये सही बुखारी की हदीस है। और जाओ जाके कहानी, कहने लगे मेरा भी दिल चाहा कि मैं दोबारा जाऊं और जाके मैं कोई बात कहूं और फिर मेरी खुलासी हो जाए। फिर मैंने किसी से पूछा कोई और भी है? तो कहा तेरे जैसे दो और हैं, एक हिलाल है और एक मिरारा है। फिर मुझे तसल्ली होगी, अब मैं नहीं जाता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया, तौबा आसान नहीं है। गलती के बाद तौबा कर लेना आसान नहीं है। ये जिंदगी भर के मुजाहिद हैं, एक गज़वे में नहीं गए। इनकी तौबा अल्लाह ताला कुरान मजीद में बयान कर रहा है। जो जिंदगी भर नेकी में ना, इनकी तौबा कैसी होनी चाहिए? इनसे कोई कलाम नहीं करेगा। कहते हम गलियों में फिरते थे, हमारे बाजार हमारे लिए अजनबी हो गए, हमारे लोग हमसे अजनबी हो गए। हमारी जमीन ऐसे थी जैसे हम कभी इस जमीन में रहे ही नहीं। ये हमारी जमीन लगती नहीं थी। हमारा शहर हमारा नहीं था, हमारे लोग हमारे नहीं थे। कोई मुझसे कलाम नहीं करता था, कोई हमारे सलाम का जवाब नहीं देता था। कहते मैं सतूनों के पीछे सलाम पढ़ता, नमाज पढ़ता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे देख लेते। अगर मैं आपकी तरफ देखता तो आप अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेते थे। छोटी तकलीफ नहीं। कहते मैं सलाम करता और चाहता था कि आपके लब हिले मेरे सलाम के जवाब के लिए। मैं देखता रहता, सलाम का जवाब नहीं आता था। कहते ऐसा हाल हमारा, कोई हमारे साथ नहीं। मेरा चचा का बेटा वो कतादा था। कहते बड़ी मोहब्बत थी मेरी उसके साथ। मैं उसके बाग में चला गया। मैंने कहा तुम कसम खाओ, मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देता हूं कि मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत नहीं करता। एक दफा का वो चुप। मैंने फिर कहा मैं तुम्हें अल्लाह की कसम दे के कहता हूं मुझे अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत नहीं है। मैंने तीसरी दफा उसको कहा, उसने मुझे जवाब नहीं दिया। अपने मुंह में कहने लगा अल्लाह जाने अल्लाह का रसूल जाने। कहते उसने हां नहीं कही, मुझे मुखातिब नहीं किया। अपना काम करता करता कहने लगा, बेइतनाई में, लापरवाही में वो कतादा ने कह दिया अल्लाह जाने अल्लाह का रसूल। कहते मैं इतना फूट फूट के रोया, रोता रोता उसकी दीवार फलांग के बाहर आ गया। एक दिन अनाज बेचने के लिए किसान आए तो किसानों में एक किसान पूछता फिरता है काब कौन है, काब कौन है। गस्सान के लोग आए, किसान आए, मंडी में अनाज बेचते थे, कहने लगे काब कौन है। लोगों ने मुझे मिलाया नहीं, इशारा कर दिया। कहते मैं पढ़ा लिखा आदमी था, उसने एक रुक्का मेरे आगे कर दिया। कहता हमारे बादशाह का पैगाम है तुम्हारे नाम। तौबा की आजमाइश थोड़ी नहीं होती, तौबा का सफर आसान नहीं होता। कहते वो रुक्का उसने मुझे दिया, उस पर लिखा था अम्मा बाद, हमें मालूम हुआ है कि तेरे साहब ने तुझसे जफा की है, तुझसे बेवफाई की है। तेरे जैसे आदमी को तो जलील नहीं करना चाहिए। हम तेरी दिलजोई करेंगे। मैंने सुना कि तेरे साहब ने, तेरे नबी ने तेरी कदर नहीं की, तुझसे जफा की है। तेरे जैसे आदमी को तो रुसवा नहीं होना चाहिए। हमारे पास आ जा, हम तेरी दिलजोई करेंगे। कहते फिर जो मेरा हाल था कि अब काफिर मेरे ऊपर तमा करने लगे। मैंने वो रुक्का फाड़ा, तंदूर में फेंका। मुझे ऐसा गम लगा अब काफिरों को मुझ पे तमा होने लगी। मेरा ईमान इतना गिर गया कि काफिरों को भी मुझ पे लालच आने लगा। मैं अपने आप को कोसने लगा। हालत ऐसी थी। 40 दिन गुजरे, एक आदमी ने आके आवाज दी बीवियों से अलग हो जाओ। मगर क्या फर्मा बरदार बंदे थे। 40 दिन किसी का कलाम नहीं है, अल्लाह के नबी से गुफ्तगू नहीं है, आपकी तरफ देखता कोई नहीं है, फिर भी अतात ऐसी है। कहते तलाक दे दूं। क्या इंतहा की अतात थी। कहता तलाक दे दूं। कहा तलाक नहीं, ताल्लुक नहीं रखना। अपनी बीवी से कहा पेके चली जा। हलाल बिन उमैया की बीवी आई, कहा वो बूढ़ा आदमी है, अल्लाह के नबी मैं खिदमत, हमारे घर खादिम नहीं, उसका रोटी कपड़ा कर देती हूं, मुझे इजाजत दे दें, मैं रह लूं।
کہا ہاں کوئی تعلق نہیں رکھنا. کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوائے رونے کے ان کو کام کیا ہے؟ جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں ادھر کچھ نہیں ہے سوائے رونے کے، تو کوئی وقت گزرتا نہیں، دن بھی روتے ہیں رات بھی روتے ہیں. لوگوں نے مجھے کہا تو بھی اپنی بیوی کی اجازت لے لے. میں نے کہا میں جوان ہوں، میں اجازت نہیں لیتا. کہتے اپنی فجر کی نماز پڑھ کے اپنی چھت پہ بیٹھا تھا، 50ویں صبح تھی. سلا پہاڑی سے کسی نے کہا تمہارے لیے خوشخبری ہو. سلاد پہاڑی مدینے پہ آدمی چڑھا، کہتا تمہارے لیے خوشخبری ہو، توبہ آ گئی. ادھر سے ایک آدمی گھوڑے پہ دوڑا کہ مجھے آ کے بتائے کہ تمہاری توبہ آ گئی. کہتے کہ آواز والے کی آواز پہلے آ گئی تھی. وہ جب میرے پاس آیا تو میرے پاس جو 2 کپڑے تھے میں نے اس کو دے دیے، میرے پاس کپڑا کوئی نہ بچا. پھر میں نے ادھار کپڑے مانگے، میں اللہ کے نبی کے پاس پہنچا. آپ ساتھیوں کے درمیان بیٹھے تھے، لوگ مجھے مل رہے تھے. واللہ وہ لوگ تھے، کہتے لوگ مجھے ایسے آ کے مل رہے تھے. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو چہرہ خوشی سے آپ کا چمک رہا تھا جس طرح چاند چمکتا ہے. توبہ صحابی کی قبول ہوئی، خوشی کس کو ہو رہی تھی؟ 50 دن اللہ کے نبی کے بھی آسان تو نہیں گزرے ہوں گے. کہا کعب آج کا دن جب سے تیری ماں نے تجھے جنا ہے ایسا دن تیرے اوپر نہیں آیا جو آج کا دن ہے، جو آج اللہ نے تیری توبہ. پھر بھی نہیں چپ ہوئے. کہا یہ توبہ آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے ہے؟ یہ اعلان جو ہمارے لیے ہوا ہے خوشخبری آپ کی طرف سے اللہ کی طرف سے؟ قرآن کی آیتیں پڑھی، تمہارے واسطے قرآن کی آیتیں نہیں، یہ توبہ آسمان سے آئی ہے. پھر کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا میرے پاس مال ہے اس توبہ کی خوشی میں سارا ہی صدقہ کرتا ہوں، میں سارا ہی صدقہ کرتا ہوں. کہا نہیں کچھ رکھ لے. کہا پھر جو خیبر کی غنیمت ہے میں وہ رکھتا ہوں، باقی میں نے کوئی مال نہیں رکھنا. اللہ تعالیٰ نے مجھے توبہ کی توفیق دی. کہتے ہیں کہ میں نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا تھا، میں نے سچی سے، اور ہمیں نجات سچ سے ملی، اور آئندہ وعدہ کر لیا کہ سچ ہی بولوں گا. اور کہتے جتنا سچ کی وجہ سے میں آزمایا گیا شاید دنیا میں کوئی بندے نہ ہوں گے جن کو سچ کی وجہ سے وہ آزمائش آئی ہو. تو توبہ آزمائش بھی لے کے آئے گی، مگر ہم نے ان آزمائشوں سے گزر کے بھی توبہ کرنی ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا وما علینا.